Hello everyone. Today we are going to start the word problems of this chapter, arithmetic progressions. Remember one thing, what I told you always, that always read question carefully, understand the question, what is given and what we are asked to show, then the solution will become very easy for us. Now let us see what the question is. Question number 15 we are starting. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain limit as follows. ये penalties हैं कैसे कैसे, see it carefully please. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and rupees 300 for the third day, etc. That means the penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. मतलब per day penalty 50 rupees increase हो रही है. ठीक है. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days. So question समझ में आना चाहिए, solution तभी आपको समझ में आता है, otherwise solution आपके दिमाग से बाहर ही निकल जाता है, वो आपके दिमाग में स्टे नहीं करेगा ज़्यादा देर तक. हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है. अब सॉल्यूशन करते हैं. पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज रुपीज़ 200, फॉर द सेकेंड डे 250, 50 इंक्रीज हो रहा है, फॉर द थर्ड डे 300. कांस्टेंट इंक्रीज है तो कांस्टेंट इंक्रीज है, ऑब्वियसली क्या बन रहा है, ये एपी है. तो हम सीधा लिखेंगे द एपी ऑफ पेनल्टीज डे वाइज, राइट. 200, 250, 300 एंड सो ऑन. ये हो गई एपी. अब पूछा क्या है इसने हमसे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी. टोटल उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर उसने काम कितने दिन डिले किया है, 30 डेज. तो उसको 30 डेज की पेनल्टी देनी पड़ेगी. सो व्हाट ही इज आस्किंग टू फाइंड, हमें फर्स्ट डे की ये प्लस सेकेंड की ये प्लस थर्ड की ये, दैट मीन्स हमें 30 डेज का सम निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड S30 हियर. AP है तो हियर A एंड D तो पहले लिख ही लेंगे हम. A 200, D is obviously 50. So what we are asked to find, sum. We will write the formula of sum. The very first formula, remember, n over 2 into 2a plus n minus 1 into D. कितनी डेज का निकालना है, 30 डेज का. तो n इज 30 over 2 into a 200 plus n 30 minus 1 into d, that is 50. Just simplify this and ये हमारा आंसर होगा 400 plus 29 into 50. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. 400 plus 0, 5 9s are 45, 10 and 4 14. ठीक है. और ये ऐड कर लिया 1850 और 15 से आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको. ठीक है. 185 into 15, 25, 40, 2, 5 1s are 5 and 4 9, and this is 185. 5 7 9 8 17 1 1 2. So it is 277510. So what is the total penalty? That is rupees 27,750. Now we'll see the next question. This is question number 17. 16 we'll do later. Question number 17 is, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees for each section of each class will be same as the class in which they are studying. Right? आगे explain किया example. A section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees. Section of class 3 will plant 3 trees and so on. Class 10 will plant 10 trees. Class 12 will plant 12 trees. And it will plant 2 trees and so on till class 12th. तो कहाँ से क्लासेस शुरू हो रही हैं, क्लास 1 to 12th. टोटल क्लासेस कितनी हुई, these are 12 classes, right?
एंड देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन जिस क्लास में है उतने ट्रीज, जैसे फर्स्ट सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1, सेकंड विल प्लांट 1, थर्ड विल प्लांट 1, तो टोटल कितने हो गए 3। सो 3 टाइम्स ऑफ द क्लास उतने ट्रीज प्लांट करने हैं। सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, 3 सेक्शंस है, 3 into 1 दैट इज 3। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, देयर आर 3 sections, 3 into 2 that is 6. Number of trees planted by class 3, 3 into 3 9 and so on. Last में number of trees planted by class 12, 3 times 12 that is 36. ये sequence लिख दी, sequence of the trees planted class wise 3, 6, 9 and so on up to 36. अब हमसे पूछा क्या है इसने, हाउ मनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हमें इन सब का सम चाहिए। बट बिफोर दैट रिमेंबर वन थिंग, ये सीक्वेंस को हमें पहले एपी प्रूव करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपने प्लीज। प्रूव इट सीक्वेंस, प्रूव द सीक्वेंस एपी फर्स्ट एंड देन सम का फॉर्मूला है हमारे पास, सम लगा देंगे हियर। रिमेंबर a2 minus a1 consecutive terms का डिफरेंस सेम AP, 6 minus 3 that is 3, a3 minus a2, 9 minus 6 that is 3. So therefore the sequence is an AP, consecutive terms का डिफरेंस सेम, sequence क्या बन गई AP। ठीक, अब हमें क्या करना है, what we are asked to find, we are asked to find the sum of all the trees, और सम निकालना है, इस AP का हमें सम निकालना है। इस AP में A is 3 and D is also 3, common difference। सम फॉर्मूला सी A plus L यूज करूंगा मैं बिकॉज द लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन हियर, एंड N मीन्स द नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल क्लासेस कितनी है 1 से लेकर 12 तक हैं, तो टोटल क्लासेस कितनी हुई 12। सो S12 he is asking 12 over 2, A is 3 plus L is 36, so 6 into 39, 54, 18 and 5, 23. So total number of trees 234. Now we'll see question number 16. Question number 16 is a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their academic performances. If each prize is rupees 20 less, these prizes are not equal prizes. ध्यान रखना, सारे equal नहीं है, सारे equal होते तो सारे 100 ईच आ जाते। ये ऐसे जैसे फर्स्ट प्राइज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम, फोर्थ के उससे कम, ऐसे। ठीक है, वो कैसे है वो दे रखा है, is rupees 20 less than its preceding price, then find the value of each prize. See the value of, let the value of first prize rupees x, second 20 less, third उससे 20 less x minus 40, fourth x minus 60, fifth x minus 80, sixth x minus 100 and the last seventh x minus 120। Remember हमें सभी prizes की वैल्यू पूछा है इसने, तो मैंने सारी लिख दी है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ एन AP, 20 डिक्रीज हो रहा है, सीक्वेंस लिखी, AP बताया, A एंड D लिख दिया, A इज x, D इज -20। इन 7 प्राइजेस का सम कितना है, दैट इज गिवन टू अस, हाउ मच इट इज रुपीज 700। नाउ इन 7 प्राइजेस का सम, पहले SN 700, N इज 7 हियर, व्हाट इज N 7, सो S N का फॉर्मूला लिख दें पहले, N over 2 इंटू A plus L वाला लिख देना। ठीक है, क्योंकि A एंड L दोनों हैं मेरे पास यहाँ। A व्हाट इज L, द लास्ट टर्म x minus 120, so N is 7, A x plus L x minus 120, that is 700। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, 7 over 2 को उधर ले जाना, 700 into 2 over 7, ये कट गया, 2x minus 120 is equal to 200, this is
So 2x is equal to 200 plus 120, that is 320. So x is 320 over 2. What is x? 160. What was x? x was the value of first प्राइस. तो अब सभी प्राइजेस की वैल्यू लिख देंगे हम. फर्स्ट की आगे 160, आगे 20 लेस करते जाएंगे सभी की. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज हाउ मच 160. वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस 20 लेस 140. वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस 20 लेस 120. सारे प्राइजेस की पूछा है इसने, ध्यान रखना. फोर्थ प्राइस 20 लेस रुपीज 100. एंड फिफ्थ प्राइस वैल्यू रुपीज 20 लेस रुपीज 80. सिक्स्थ वैल्यू 20 लेस देन दिस रुपीज 60. एंड द लास्ट वन value of the seventh price, that is 20 less than 60, that is rupees 40. So these are the values of these 7 prices. Now we'll see the next question. The next is question number 18. This is a spiral is made up of successive semicircles. Spiral कैसे बना है देखो. Here center A एक semicircle, then second semicircle is with center B, third is with center A again, fourth is with center B, and fifth AB center consecutively आ रहे हैं. फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का A, फोर्थ का B एंड सो. ठीक है, इस वजह से ये स्पायरल बना है. एक्चुअल में ये स्पायरल सेमी सर्कल से बना है, ध्यान रखना. दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल. ठीक है, ये सेकंड सेमी सर्कल. इट इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स. सो उन सर्कल्स के रेडियाई वी आर गिवन. फर्स्ट का रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर. दिस रेडियस इज 0.5. सेकेंड का 1, थर्ड का 1.5, फोर्थ का 2 एंड सो ऑन. ठीक है, रेडियाई इज गिवन, रेडियाई आर गिवन. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semi circles. 13 consecutive. In here, in this case, we are given the value of pi. Pi is given 22/7. ये हमें यूज करने को बोला है. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ हमसे पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल. लेंथ ऑफ द स्पायरल. फर्स्ट ये लेंथ कौन सी है? लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल में क्या होता है? दिस इज सर्कमफ्रेंस. तो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? दैट इज पाई इनटू आर. पूरे सर्कल का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का हाफ ऑफ दैट इज पाई आर. तो सभी सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस निकालने हैं हमें. फर्स्ट का, सेकंड का, फिर थर्ड का, देन फोर्थ सर्कमफ्रेंस, फिफ्थ एंड सो ऑन. 13 का टोटल पूछा है इसने हमसे सम. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल दैट इज इट्स सर्कमफ्रेंस, पाई इनटू आर. रेडियस दिया है फर्स्ट का 0.5 पाई, सेकंड का 1 पाई, थर्ड का 1 पाई. अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मैं पाई को वैल्यू साइन करूँगा लास्ट स्टेप में. ठीक है, ये सबसे इजी रहेगा हमारे लिए. एंड ऑब्वियसली ये 0.5 पाई, 1 पाई, इट्स वेरी ऑब्वियस. 0.5 का गैप आ रहा है तो इट इज एन AP. सो AP ऑफ AP सो फॉर्म्ड वी कैन से फर्स्ट 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई एंड सो ऑन. हियर A एंड D ले लें. 0.5 पाई, D इज ऑल्सो 1 पाई माइनस 0.5 पाई. दैट इज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप ऐसे 0.5 पाई. अब करना क्या है, हमें इन सब का सम निकालना है. हाउ मेनी टर्म्स? 13 टर्म्स. Sn he is asking. What is Sn? The very first formula, n over 2 into 2a plus n minus 1 into d. How many terms sum he is asking? 13. तो n को 13 पुट कर दो. a and d ये है मेरे पास. a 0.5 pi plus 13 minus 1 into d is again 0.5 pi. अभी मैंने पाई को वैल्यू साइन नहीं करी है. इन द लास्ट स्टेप मैं उसको वैल्यू साइन कर दूंगा. इसको ऐसे ही कैरी करते जाएं साथ से.
So S13, 13 over 2 into 1 pi plus 12 into 0.5 pi. So 13 over 2, 1 pi plus 6 pi. 12 5 is 60, 6.0, that is 6. So 13 over 2 into 1 pi plus 6 pi, that is 7 pi. अब pi को वैल्यू साइन करना, ठीक है. अगर पहले साइन करते तो फ्रैक्शन से डील करते आप, बेटर है कि लास्ट में आप वैल्यू साइन करें. 22 over 7 it is given to us, ठीक है. So 11 3 is the 33, 11 and 3 14. So this is the length of spiral made up of 13 consecutive semicircles.